Good morning to everyone. I'm going to discuss about the pharmaceutical organic chemistry one based on the PCI syllabus. I will upload the notes also in the link. You can download the notes. Everyone used to say organic chemistry is a very difficult subject, but in my sense it is not the difficult. If you don't understand, obviously any subject will be the difficult subject. Understand the concept, it becomes very easy. Please do one favor for me. Watch the video until end. Don't skip the video, please. The today's topic is what is organic chemistry. Organic chemistry is the branch of chemistry deals with the structure, properties, composition, reaction and synthesis of the compounds containing carbon. This is very important. It means any compound, if it having the carbon in their structure, benzene, it having the 6 carbons. If it is having the carbon in their structure, we are studying about its structure. We are studying about its property. Property means either it is acidic or basic और सॉलिड और लिक्विड. किसी का भी इंसान का भी प्रॉपर्टी होने दो, या गोरा है, काला है, या छोटा है, लंबा है, whatever you take. In the compounds also, okay, what type of property it will be have, acidic, basic or whatever it, solid or liquid. Okay, then reaction. This benzene, it is going to be react with what, and what it is going to be produced with the reaction of this. Substitution में इन्वॉल्व होता है, एडिशन में इन्वॉल्व होता है. okay? उसमें रिएक्ट होने के बाद क्या प्रोडक्ट देता है उसके बारे में पढ़ना. Then synthesis. Synthesis of any carbon containing compound. For example, you take benzene. Benzene we are preparing from the crude oil. How we are going to prepare from the crude oil? What reagent we are going to be add? Study about all this only is called as the organic chemistry. In the one word short definition means organic chemistry is the study of carbon compounds which are found in the living organisms. कार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं है. जिसमें कार्बन है वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है. Then what is the pharmaceutical organic chemistry? Pharmaceutical organic chemistry also, it is also branch of the science which deals with the carbon containing compound for the need of pharmacy. This is very important. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का फार्मेसी में क्या नीड है, क्या मायने है इसके फार्मेसी में, उसके बारे में ही पढ़ना फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यूज्ड इन ड्रग डिजाइन. ड्रग को डिजाइन करने के लिए, किसके डिजाइन करने के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होने दो, टीबी के लिए होने दो, या वायरस के लिए होने दो, या एचआईवी के लिए होने दो. स्टडी अबाउट दैट कार्बन कंपाउंड ओनली, especially in the pharmacy, is known as the pharmaceutical organic chemistry. This is the definition of pharmaceutical organic chemistry. Now we are going to discuss about the classification of organic compounds. This is the classification of the organic compounds. Organic compounds means already we know that the carbon containing compounds. There are two types. One is the alicyclic. They are also called as the acyclic. They are also called as the open chain. Another one is the cyclic or closed chain. Acyclic or open chain compounds classified into two types. One is saturated, another one is the unsaturated. Then cyclic or closed chain compounds, they are classified into two types. One is called as the homocyclic compounds or carbocyclic compounds. Another one is the heterocyclic compounds. Homocyclic compounds or carbocyclic, they are classified into two types. One is the alicyclic. Here acyclic is there. This one is the alicyclic. I will tell the difference. And aromatic compounds. Aromatic compounds classified into two types which will become under in the homocyclic. One is the benzenite compounds. Another one is the non-benzenite compounds. In the same way, heterocyclic also classified into two types. One is the aromatic. Another one is the non-aromatic. Then we will be discuss one by one. This one I told is the acyclic and this is the cyclic. It means this is in the form of open chain. This will be discussed later. Open chain, for example, you can take the propane. This is the open chain. This is in the cyclic form. Cyclic form means here it is in the open chain form. Here it is in the form of cyclic ring form. There's the same propane we are writing in the ring form. That's why it is called as the closed chain. Now we will be discuss about the
closed chain compounds. The closed chain compounds, I told they are classified into two types. One is homocyclic compound, another one is the heterocyclic compounds. Then homocyclic compounds means what? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमो मीन्स सेम, इसमें सेम एटम रहता है, एंटायर पूरे रिंग में सेम एटम रहता है. फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन ले लो. साइक्लोहेक्सेन में एक ही टाइप का एटम रहता है. देखो कार्बन 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 कार्बन, एंटायर रिंग कंपोज्ड ऑफ कार्बन, पूरे रिंग कार्बन से ही बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक. ये टू टाइप्स है, होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक. इसको एक को एलिसाइक्लिक बोलते हैं, अदर वन को एरोमेटिक बोलते हैं. एलिसाइक्लिक मीन्स व्हाट? दिस द साइक्लोहेक्सेन इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड. एलिसाइक्लिक मीन्स which contain only the carbons and it is not the aromatic. It contains only the carbon and it won't have any double bonds. It won't have any double bonds means it is not the aromatic. You can take cyclohexane, you can take cyclopentane. See, any double bond is there? No. Same types of atoms are there, carbons only present in this also, in this also. Then cyclopropane, all these are the alicyclic compounds. इससे पहले क्या बताया था? एसाइक्लिक कंपाउंड. एसाइक्लिक मीन्स ओपन चेन रहता है, यहाँ पे एलिसाइक्लिक मीन्स क्लोज्ड चेन रहता है, लेकिन एटम्स सेम टाइप रहते हैं, एक ही टाइप के एटम्स रहते हैं. ये सब रिंग में देखो कार्बन ही है, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में है और ये एरोमेटिक नहीं है. एरोमेटिक कब होता है? तब अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, तब एरोमेटिक होता है. नेक्स्ट, एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड कब बोलते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं. एग्जाम्पल बेंजीन, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं. इवन हक्केल्स रूल को भी वो भी करता है. हक्केल्स रूल बोलते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. फॉर एग्जाम्पल ले लो, फॉर्मूला क्या है हक्केल रूल का? 4n + 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 डबल बॉन्ड है. एक डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 3 डबल बॉन्ड मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स. देन 4n इज इक्वल टू 6 - 2, देन n इज इक्वल टू 4/4 that is equal to 1. क्या आया है? n is equal to 1. It obeys the Hockel rule. That's why it is aromatic. एरोमेटिक में दो टाइप के कंपाउंड्स है, एक को बोलते हैं बेंजीनाइट और एक को बोलते हैं नॉन बेंजीनाइट. बेंजीनाइट का मतलब ये है कि वो रिंग में, वो स्ट्रक्चर में बेंजीन रहता है. ये भी बेंजीन भी बेंजीनाइड है, इसको नाफ्थालिन बोलते हैं. ये भी बेंजीनाइड है क्योंकि ये स्ट्रक्चर में बेंजीन है. देखो इधर एक बेंजीन, इधर एक बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं? नाफ्थालिन. ये एरोमेटिक है. तब आप हक्केल रूल कैलकुलेट करेंगे तब n इज इक्वल टू 2 आएगा. इसका n इज इक्वल टू 2 का मतलब इट्स अबेइंग द हक्केल रूल और अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स है, इसलिए ये एरोमेटिक है. और बेंजीन है उसलिए इसको क्या बोलते हैं? बेंजीनाइड बोलते हैं. इट हैविंग द बेंजीन, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एज द बेंजीनाइड. नॉन बेंजीनाइड का मतलब क्या है? नॉन बेंजीनाइड इज एरोमेटिक कंपाउंड ओनली. दिस इज एरोमेटिक ओनली बट इट वोंट कंटेन बेंजीन. एरोमेटिक ही है वो, लेकिन उसमें बेंजीन नहीं रहता है. एग्जाम्पल एजोलिन लो. एजोलिन का स्ट्रक्चर लिखता हूं यहाँ पर. ये बेंजीन नहीं होता, बेंजीन 6 मेंबर्ड है, ये 7 मेंबर्ड है. यहाँ पे कैलकुलेट करके देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड है, बेंजीन नहीं होता. इधर देखो ये 5 मेंबर्ड है, वो भी बेंजीन नहीं होता है. ये भी अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, इसमें भी यहाँ एक डबल बॉन्ड, उसके बाद एक गैप और डबल बॉन्ड, इसके बाद एक गैप,
फिर से डबल बॉन्ड, इसके बाद एक गैप, फिर से डबल बॉन्ड। किधर से भी देखो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये एरोमेटिक ही है, लेकिन इसमें बेंजीन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एजुलिन को नॉन बेंजीनाइड बोलते हैं। अब हेटेरोसाइक्लिक बारे विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट द हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक आल्सो दे आर द in the form of ring, but instead of carbon, heterocyclic compounds is nothing but cyclic compound, but it won't have only the carbon. In this, one or two of the carbons or any number of the carbons, they are going to be replaced by the other atom. other hetero atom से replace होता है। यहाँ कार्बन के जगह पे क्या है, बेंजीन देखो, इसमें कार्बन रहता है, यहाँ पे कार्बन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कार्बन है बट यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, अदर देन कार्बन, जो भी एटॉम रहेगा उसको हेटेरो एटॉम बोलते हैं। हेटेरो एटॉम व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द रिंग, इट इज कॉल्ड एज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। Remember what it is called, heterocyclic compound, like pyridine, इसको pyridine बोलते हैं। ये aromatic है क्योंकि तीन अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स है और ये हक्केल रूल को ओबी करता है, n is equal to 1, that's why it's called as a aromatic. Then non-aromatic, non-aromatic का मतलब उसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं रहते। एग्जाम्पल यू कैन टेक पायरॉन, इसको पायरॉन बोलते हैं। ये पायरॉन में देखिए अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ही है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट वोंट कंटेन द अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। यहाँ हक्केल रूल के बारे में भूल जाइए, हक्केल रूल तो अभी ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं है। पहले ही फर्स्ट रूल क्या है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड रहना, तभी एरोमेटिक बोलते हैं। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक, बट इट इज हेटेरोसाइक्लिक बिकॉज वन ऑफ द कार्बन रिप्लेस विद द हेटेरो एटॉम, दैट इज द ऑक्सीजन। नेक्स्ट वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द acyclic compounds. Acyclic compounds, what I told, it is classified into two types. One is saturated, another one is unsaturated. Acyclic, इसको ही क्या बोले हैं, acyclic को ही open chain. Acyclic open chain classified into two types. One is saturated, another one is unsaturated. Saturated का एग्जाम्पल लीजिए जिसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अनसैचुरेटेड में देखो प्रोपेन प्रोपीन हो जाता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें देखिए ये सिंगल बॉन्ड के वजह से सैचुरेटेड बोलते हैं, ये डबल बॉन्ड के वजह से इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। इसको और बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, या प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।